In this video we are starting with endocrine system of our body, okay, and we will look each gland, the anatomy of each gland in detail. Okay, so basically there are two types of system in our body, okay, exocrine and endocrine. Exocrine systems are ducts, means with ducts, means they carry their whatever the content in the ducts, in form of ducts, lumens or cavities. Okay, what kind of content they carry? They carry sweat, sebaceous gland, mucus. Sebaceous mucus matlab mucus substance, mammary glands. These all are under exocrine glands. Then endocrine glands, which we are going to study in details. Okay, these are also called as ductless glands. These glands carry their work with the help of hormones. Okay, means हॉर्मोन्स सारा काम करते हैं और हॉर्मोन्स जो है वो कैपिलरीज थ्रू फुल बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, देन वी विल लुक एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी as we have studied here only that they acts through chemical messengers known as hormones. Okay, now there are total 8 glands or endocrine glands in our body, namely hypophysis cerebri, which is also called as pituitary gland, then thyroid gland, parathyroid, thymus, suprarenal means above the kidney, and pineal, pancreas, testes and ovaries. So first we will take a look at hypophysis cerebri, which is also called as Piyush Granthi in Ayurveda. Okay, then it is called as pituitary gland. Pituitary gland, where it is located, first we will see there. It is located near the base of the brain. Okay, base of the brain, and where exactly where? So the location is given in hypophyseal fossa, also known as sella turcica, also known as pituitary fossa of sphenoid bone. So in the video of skull bone, you can find it anywhere. There is sphenoid bone. Okay, a part of skull bone. 8 cranial bones में से एक है sphenoid bone. Then sphenoid bone has a slight depression like this, and this depression here, such kind of structure known as pituitary gland is located, means this is the depression of sphenoid bone. Okay, and here pituitary gland is located in the depression of sphenoid bone, and that depression is called as hypophyseal fossa or hypophysis. Hypophysis means pituitary, means उसके लिए फोसा है एक. ओके, तो हाइपोफाइसियल फोसा, ऑल्सो नोन एज सेला टर्सिका, ऑल्सो नोन एज पिट्यूटरी फोसा ऑफ स्फिनॉइड बोन. ओके, this is the location. Then what it is called as, sorry, then what it is called as, it is also called as master of endocrine orchestra, means जितने भी endocrine glands है उसका master pituitary को बोला है. Now why? Because pituitary जो है वो एक तो सिक्रीशन का काम करता है, बहुत सारे हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है, ये मेजर रोल है उसका. देन इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स अदर ग्लैंड्स, मेनी ग्लैंड्स टू सिक्रीट देयर हॉर्मोन्स. तो ये सिक्रीशन का, स्टिमुलेशन का, ये दो मेजर काम कर रहा है और बहुत मेजर अमाउंट में कर रहा है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा और एंडोक्राइन ग्लैंड. देन व्हाट इज़ इट्स शेप? इसका शेप कैसा है? तो ओवल शेप है. ओके, देन एंटीरो पोस्टीरियर, मीन्स एंटीरो पोस्टीरियर ऐसा डायमीटर कितना है? तो 8 mm है, और ट्रांसवर्स डायमीटर 12 mm. वेट इंपॉर्टेंट है 500 mg. ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और इसका लोकेशन दिया है यहाँ पर, और ये एक पिक्यूलरिटी वाला पॉइंट है. देन वी विल टेक यहाँ पर लोकेशन में एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सस्पेंडेड फ्रॉम फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन बाय स्टॉक कॉल्ड इनफंडिबुलम. तो है ना, सपोज इमेजिन करने का, इधर ऊपर ब्रेन है. ओके, और ये ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स है. उसमें का जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ना, सब बेस ऑफ ब्रेन पे होता है कहीं पे. ये ब्रेन है, ब्रेन के बेस पे थर्ड वेंट्रिकल, वहाँ से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आके ऐसा पोटली टाइप बन रहा है. सो वो स्टॉक जो है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, और उससे जुड़ा हुआ जो है वो पिट्यूटरी है. ओके, अब पिट्यूटरी के पार्ट्स देखते हैं. नाउ पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी में हम देख सकते हैं, पिट्यूटरी को ना हम ऐसे इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अब ये ऐसा साइड व्यू में नहीं है, ऐसा स्ट्रेट व्यू में. तो ऐसा 2 लोब्स होते हैं पिट्यूटरी के. तो एंटीरियर एडिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर वाले को बोलते हैं, और पोस्टीरियर वाले को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस. ठीक है, अब एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, इन दोनों के हम 3 पार्ट्स करते हैं. अब न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम साइड में रखते हैं. अब देखते हैं हम एडिनो हाइपोफाइसिस. ओके, एडिनो हाइपोफाइसिस के 3
डिविजन्स कर दिया हमने। सपोज़ इसमें का मैंने ये इतना पार्ट समझा एडिनो हाइपोफाइसिस से, उसके 3 पार्ट्स क्या है, उसके भी एंटीरियर है, इंटरमीडिएट है और ट्यूबरकुलर मतलब पोस्टीरियर है। सो जो एंटीरियर वाला पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस का, उसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर लोब या पार्स एंटीरियर या पार्स डिस्टालिस या पार्स ग्लैंडुलरिस। क्यों ग्लैंडुलरिस? बिकॉज ये लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स करता है। देन आता है एडिनो हाइपोफाइसिस का बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब और पार्स इंटरमीडिएट। ये देखने जाए तो ये यहाँ पर होता है, राइट। मतलब ये एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस दोनों के बीच में, इसके लिए इसको इंटरमीडिएट लोब बोलते हैं। और ये स्मॉल होता है, अवैस्कुलर होता है, फ्लैट स्ट्रिप लाइक होता है और अवैस्कुलर होता है, मीन्स इसमें वेसल्स नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। देन ये एडिनो और न्यूरो के बीच में ये हमने पढ़ा और ये सेपरेट होता है बाय क्लेफ्ट। ओके, क्लेफ्ट दिख रहा है, यस। अब जो थर्ड वाला एडिनो हाइपोफाइसिस का पार्ट है वो कहाँ जाएगा, तो वो ऊपर वाला पार्ट होता है। ये एंटीरियर वाला पार्ट, ये इंटरमीडिएट वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट थर्ड पार्ट है, जिसको बोलते हैं ट्यूबरकल और पार्स ट्यूबरकुलरिस ट्यूबेरालिस। ओके, अब ये अपर पार्ट है, ये इन्फंडिबुलम, ये जो अक्खा स्टॉक लाइक इन्फंडिबुलम है उससे शुरू होके ये कंटिन्यू होता है, तो ये एक्सटेंशन ऑफ इन्फंडिबुलम है और ये एक्सटेंड होता है एंटीरियर लोब में। ये 3 पार्ट्स हो गए एडिनो हाइपोफाइसिस के, इतना क्लियर है। देन न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब ये पोस्टीरियर लोब। ओके, अब ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट वाला ये पार्ट कौन सा है, पार्स पोस्टीरियर, पार्स पोस्टीरियर लोब या न्यूरल लोब। ओके, और न्यूरल कनेक्शंस होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। देन इसके बीच ये वाला पार्ट इनफंडिबुलम, अब ये पूरा बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। और ये ऊपर वाला सेकेंड पार्ट है जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, जो कि कनेक्ट करता है न्यूरल कनेक्शंस को, ऊपर वाले जो कनेक्शंस है हाइपोथैलेमस के उसको पोस्टीरियर पार्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है। और देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट है मीडियन एमिनेंस ऑफ ट्यूबर सिनेरम मतलब क्या, यही इनफंडिबुलम से जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आता है कंटिन्यू होता है ये बीच वाला, उसको बोलते हैं मीडियन एमिनेंस ऑफ ट्यूबर सिनेरम। मतलब हमने बेसिकली पिट्यूटरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। फिर एडिनो हाइपोफाइसिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंटीरियर लोब, पार्स डिस्टालिस बोलते हैं जिसको, फिर इंटरमीडिएट लोब एंड देन ट्यूबरकल लोब। देन हमने न्यूरो हाइपोफाइसिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पोस्टीरियर लोब, पार्स पोस्टीरियर, इनफंडिबुलम और मीडियन एमिनेंस ऑफ ट्यूबर सिनेरम। ईजी। सबसे पहले हमने क्या किया, बेसिक 3 पॉइंट्स और लोकेशन और फिर पार्ट्स। उसके बाद हम लोग शॉर्ट में हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड लिखेंगे। हिस्टोलॉजी में हमने फिर से वही 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना उसको, एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। सो क्या क्या है इसमें वो बेसिक देखेंगे। एंटीरियर में स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ होता है, इसके लिए उसमें क्रोमोफिलिक और क्रोमोफोबिक सेल्स है, ठीक है। इंटरमीडिएट वाले पार्ट में बेसोफिलिक सेल्स और क्रोमोफोब सेल्स होते हैं। सो इसके लिए ये जो 2 है वो करते क्या है, वो क्रोमोफोब सेल्स है, मतलब ये ऑब्वियसली कलर सिक्रीशन स्टेनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा, ये सिक्रीट क्या करते हैं, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मेलानोसाइट्स क्या करते हैं, कलर देने का काम करते हैं, तो वो कलर देने वाले सेल्स को स्टिमुलेट कौन कर रहा है, इंटरमीडिएट लोब, और कलर देने का काम कौन कर रहा है, एंटीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब के पास पिट्यूसाइट्स होते हैं, ये क्या है, तो नर्व सेल्स है, मॉडिफाइड नर्व सेल्स है। ओके, ये नर्वस कनेक्शन पोस्टीरियर लोब के पास है, ओके याद रखना। देन इसके पास पिट्यूसाइट्स है, वो क्या सीक्रेट करते हैं, वाजोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वाजोप्रेसिन को क्या बोलते हैं, ADH का फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, और ये सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होता है, याद रखने का, वाजोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। उसके बाद हम ब्लड सप्लाई करेंगे। ब्लड सप्लाई को एक कंसाइज वे में मैंने शॉर्ट कर दिया। अब याद क्या क्या रखना है पिट्यूटरी में, जब ब्लड सप्लाई लिखेंगे हम तब याद रखना है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये मेजर आर्टरी है जो सप्लाई करता है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किसका ब्रांच है, कॉमन कैरोटिड का ब्रांच है। कॉमन कैरोटिड किसका ब्रांच है, तो आर्च ऑफ एओर्टा से निकलता है। सो कॉमन कैरोटिड से 2 ब्रांचेस निकलते हैं ना, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो ये इंटरनल वाला पिट्यूटरी को सप्लाई करता है। अब इंटरनल से हमें याद किससे रखना है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पिट्यूटरी को सप्लाई करता है, उससे हम ऊपर 2 आर्टरीज निकालेंगे, नीचे 2 आर्टरीज। ऊपर वाले 2 ऊपर है इसके लिए सुपरफिशियल सुपीरियर, और किसके लिए, पिट्यूटरी के लिए, तो हाइपोफाइजियल आर्टरी, सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी और इन्फीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी, ऐसे हम 2 आर्टरीज निकालेंगे। ओके, अब ये जो सुपीरियर वाला है ये किसको सप्लाई कर रहा है, तो ये इन्फंडिबुलम क्या था, तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था, याद है, यस, इन्फंडिबुलम और हाइपोथैलेमस इनको सप्लाई करता है। और
इन्फीरियर वाला किसको सप्लाई करता है, तो पोस्टीरियर लोब को सप्लाई करता है। ये जो पोस्टीरियर लोब था उसको सप्लाई करता है। अब इन्फीरियर वाले जो आर्टरीज है, इन्फीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी, ये खुद में जाके मिल जाते हैं किधर, पोस्टीरियर लोब पे। पोस्टीरियर लोब पे मिलके फिर पोस्टीरियर लोब को सप्लाई करते हैं। अब जब मिल जाते हैं उसके बाद वो एक आर्टरी बनाते हैं और वो आर्टरी सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस कर देती है। और ये एनास्टोमोसिस मतलब क्या, तो जुड़ जाते हैं, दो अलग आर्टरीज मिलके जुड़ जाना, उसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस। और इसकी वजह से एक जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टेरियल रिंग बोलते हैं। ओके, नाउ ये आर्टेरियल सप्लाई हो गया। ब्लड सप्लाई, वीनस सप्लाई भी बहुत इजी है। अब इसको दो ही मेजर वेन से सप्लाई करते हैं, लॉन्ग पोर्टल वेन और शॉर्ट पोर्टल वेन। मतलब पोर्टल वेन सप्लाई करती है उसका लॉन्ग पार्ट और शॉर्ट पार्ट। अब शॉर्ट पार्ट किधर जा रहा है, इन्फंडिबुलम तक ख़त्म हो जा रहा है, और लॉन्ग पार्ट किधर जा रहा है, तो एंटीरियर लोब तक जा रहा है। ओके, सो लॉन्ग पार्ट एंटीरियर लोब तक सप्लाई करता है और शॉर्ट पार्ट जो है वो इन्फंडिबुलम तक सप्लाई कर देता है। अब एंटीरियर लोब तक जा रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी तक जा रहा है ना। सो ये करता क्या है, तो हाइपोथैलेमस सबको पता है, हाइपोथैलेमस क्या है, बॉस है, सारे ग्लैंड्स का बॉस है। वहाँ से मैसेज जाता है कि तुम ये करो, तुम वो करो। तो हाइपोथैलेमस क्या बोलता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को जब भी कोई हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, कोई सिक्रीशन करना है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी पोर्टल वेन डायरेक्ट इधर जाता है ना एंटीरियर पिट्यूटरी में। सो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी पोर्टल वेन्स में हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स भेजता है, जो पोर्टल वेन एंटीरियर लोब तक लेके जाती है और फिर एंटीरियर लोब या एंटीरियर पिट्यूटरी सारे हार्मोन्स सिक्रीट करता है। सो इतना ही है वीनस सप्लाई। उसके बाद हम क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे पिट्यूटरी का। ओके, नाउ क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी में क्या देखना है, पिट्यूटरी ट्यूमर्स देखने हैं हम लोग को। अब पिट्यूटरी ट्यूमर्स की वजह से कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिसको, अभी ट्यूमर है, सपोज यहाँ पर ट्यूमर हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स का एक्यूमुलेशन हो गया, तो इसकी वजह से बहुत सारे सेल्स आते रहेंगे, इस एरिया पे प्रेशर क्रिएट होगा। तो कौन से ऐसे एरियाज़ है जिसके वजह पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से जिस पे प्रेशर क्रिएट होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जनरल सिम्टम्स है और स्पेसिफिक सिम्टम्स है। सबसे पहले जनरल सिम्टम्स में क्या है, प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ सेला टर्सिका लीड्स टू इट्स एनलार्जमेंट। अब ये सेला टर्सिका है, ये स्फिनॉइड बोन था आपका, उसका डिप्रेशन, सपोज ऐसा, उसका डिप्रेशन है सेला टर्सिका। अब ये जो डिप्रेशन है इसके ऊपर पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी में ट्यूमर हो गया, मतलब सेल्स बढ़ रहा। सो ये सेल डिप्रेशन जो है वो और बढ़ता जाएगा, सेला टर्सिका बढ़ता जाएगा, एनलार्जमेंट, क्योंकि उसके अंदर है पिट्यूटरी। ये एक हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑप्टिक कायज़मा पे प्रेशर आता है जिसकी वजह से बाइटेम्पोरल हिमेनोपिया हो सकता है। अब ऑप्टिक कायज़मा क्या है वो भी मैंने लिखा है, और बाइटेम्पोरल हिमेनोपिया भी क्या है वो भी लिखा है। ऑप्टिक कायज़मा क्या है, तो एक्स शेप स्ट्रक्चर एट पॉइंट बिलो ब्रेन वेयर 2 ऑप्टिक नर्व क्रॉस ईच अदर। ओके, यहाँ पर देखो, सपोज़ ये आइज़ है, ओके, आइज़ से ऑप्टिक नर्व आती है और वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जिस पॉइंट पे क्रॉस करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिक कायज़माटा या ऑप्टिक कायज़मा। सो यहाँ से सिग्नल पिट्यूटरी लेके जाता है ना, तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड में स्वेलिंग है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी रूट्स है उसमें अगर स्वेलिंग है तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर अगर इधर पे स्वेलिंग है तो बाइटेम्पोरल हिमोनिपिया हो सकता है, हिमियानोपिया हो सकता है। व्हाट इज़ दिस, पार्शियल ब्लाइंडनेस, बिकॉज वो हमें दिखता है, जो रूप ग्रहण करने का है, मतलब जो दिख रहा है उस पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ओके, देन थर्ड पॉइंट क्या है, प्रेशर ऑन हाइपोथैलेमस। मेन पिट्यूटरी पे अगर ट्यूमर है तो हाइपोथैलेमस तो मेन है, तो उससे ही सारा काम हो रहा है, तो वो भी अफेक्ट हो गई तो उस पर प्रेशर आएगा। पिट्यूटरी के ट्यूमर की वजह से वो काम अच्छे से नहीं करेगा तो हाइपोथैलेमस पे प्रेशर आएगा। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो फ्रॉलिच सिंड्रोम हो सकता है। फ्रॉलिच सिंड्रोम की वजह से कौन से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, तो ओबेसिटी है, हाइपोगोनाडिज्म और शॉर्ट स्टेचर है, ये भी बताती हूँ। अब प्रेशर आ रहा है, हाइपोथैलेमस अच्छे से काम नहीं कर रहे, दैट मीन्स हाइपोथैलेमस जो है वो जितने भी उसका काम है वो कम कर रहा है, मतलब प्रेशर आ गया ना उस पर, तो वो लोड की वजह से काम कम कर पा रहा है, ऐसे याद रखना। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ओबेसिटी। कैसे हुआ, एक्सेस कैलोरी इनटेक, मतलब एक इंसान है, सपोज उसमें पिट्यूटरी के ऊपर ट्यूमर है, पिट्यूटरी ट्यूमर है, तो इसके लिए उसके हाइपोथैलेमस पे प्रेशर है। तो अब क्या हुआ, उसने मीठा खाया, ओके, और मीठा खाया, अब खाते जा रहे हैं। अब हम लोग जब नॉर्मल अपन लोग खाएंगे तब एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि ओके,
अपना बॉडी बोलता है कि अपना इतना इंटेक बस हो गया शुगर का या कैलोरी का, अब अपना बॉडी इंटेक और नहीं कर सकता। बट हाइपोथैलेमस अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, इसके वजह से वो इंटेक स्टॉप होने का कोई मैसेज ही नहीं जाता और उसके वजह से एक्सेस कैलोरी इंटेक होता रहता है और ओबेसिटी, ये बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉलिट सिंड्रोम का होता है। देन हाइपोगोनाडिज्म क्यों हो रहा है? बिकॉज GnRH दैट इज़ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस भेजता है वो भेज ही नहीं रहा है, तो गोनाड की ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए हाइपोगोनाडिज्म। देन शॉर्ट स्टेचर, अब शॉर्ट स्टेचर क्यों? बिकॉज ग्रोथ हार्मोन नहीं भेज पा रहा है, इसके लिए शॉर्ट स्टेचर। नेक्स्ट है प्रेशर ऑन थर्ड वेंट्रिकल। ओके, सो प्रेशर ऑन थर्ड वेंट्रिकल के वजह से CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑब्स्ट्रक्ट होता है और इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होता है। ये क्या था? पिट्यूटरी था। सो पिट्यूटरी के ऊपर क्या था? थर्ड वेंट्रिकल, ब्रेन था, ब्रेन के बेस पे थर्ड वेंट्रिकल था। ओके, अब ये थर्ड वेंट्रिकल से स्टॉक आ रहा था इधर पे, तो मतलब इसका थर्ड वेंट्रिकल का कनेक्शन है। सो अगर इस पे ऑब्स्ट्रक्शन पिट्यूटरी का ट्यूमर है तो यहाँ पर ट्यूमर हो जाएगा सपोज, तो ये पूरा जो स्टॉक है, ये पूरा जो रूट है उस पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा और जिसके वजह से जो CSF है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो ब्रेन से आ रहा था वो नहीं आ पाएगा और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जिसके वजह से ब्रेन में ही रहेगा वो और ब्रेन का इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा और प्रेशर इंक्रीज के वजह से ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, ऐसा बहुत सारा चांसेस है। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर ऑन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। अब देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो कौन से 2 टाइप के हार्मोन सिक्रेट करता था? वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ओके, अब वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन करता क्या है? सो वासोप्रेसिन को लेते हैं हम ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। व्हाट इज़ डायूरेसिस? डायूरेसिस मतलब एक्सेस ऑफ यूरिन। हमें एक्सेस ऑफ यूरिन हो सकता है, जितना पानी पी रहे उतना यूरिन हो सकता है, बट अपने बॉडी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है जिसकी वजह से सारा वाटर जो है वो रिलीज़ नहीं होने देता, अपने बॉडी को स्टोर भी करना पड़ता है कुछ वाटर, तो वो स्टोर करने का काम ADH करता है, मतलब एक्सेस ऑफ यूरिनेशन रोक के वाटर स्टोर कर रहा है। तो अगर ये पिट्यूटरी में ट्यूमर है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी सपोज अच्छे से काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से वो ADH कम रिलीज़ कर रहा है या रिलीज़ ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? एक्सेस ऑफ यूरिन होता रहेगा और ये कॉमन सिम्टम है और डीमार्किंग एकदम हाईलाइटिंग सिम्टम होता है ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये एक पॉइंट है। सो हमने कितने पॉइंट्स पढ़े जनरलाइज सिम्टम में पिट्यूटरी ट्यूमर के रिलेटेड? सबसे पहले सेला टर्सिका का एनलार्जमेंट, फिर बाइटेम्पोरल हीमियोनोपिया, फिर फ्रॉलिट सिंड्रोम हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। देन थर्ड वेंट्रिकल में प्रेशर आएगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और ADH की वजह से डायबिटीज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला। ओके, डायबिटीज़ इंसिपिडस। ओके, देन स्पेसिफिक सिम्टम्स में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस स्पेसिफिक सेल्स की वजह से कौन से सिम्टम्स हो रहे हैं वो देखना है। तो एसिडोफिल या इओसिनोफिल एडिमा, मतलब इनका अभी ये सारे का ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो अब पिट्यूटरी में ट्यूमर है तो एक तो कम हो जाएगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कम हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सारा ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो एसिडोफिल और इओसिनोफिल काज ऑफ एडिनोमा, मतलब ज़्यादा ग्रोथ हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो जाइजेंटिज्म या अक्रोमेगेली हो सकता है। क्यों? बिकॉज ये लोग ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ावा देते हैं रिलीज़ होने के लिए, तो ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो अक्रोमेगेली और जाइजेंटिज्म। अक्रोमेगेली क्या होता है पता है? जो जॉ होता है ना उसका एक्सेस ग्रोथ होता है। देन जाइजेंटिज्म मीन्स एक्सेस ग्रोथ इन हाइट। देन बेजोफिल एडिमा मतलब बेजोफिल सेल्स का एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ। सो बेजोफिल सेल्स का एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ की वजह से कुशिंग्स सिंड्रोम होता है। पफी फेस ऑल ओवर द पफी फेस, पफी हैंड्स, सब पफी हो जाता है, मोस्ट कॉमनली इन फीमेल्स। देन क्रोमोफोब एडिमा की वजह से हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है, और डैमेज टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी की वजह से अगेन सेम डायबिटीज़ इंसिपिडस।